أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پتمس درسس مز پڑھو اسہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمو منجو رب العالمینس دعا کہ اے بارلا خدائے میانہ ذریت مز کرن اخ تیتھ رسول مبعوث یس یمن لکن برونٹھ کن اللہ تبارک و تعالیٰ سنز یس کتاب تمس پہ نازل گژھِ تمچ تلاوت کر بی ہیچنائے تمن یہ کتاب اور حکمت اور بی کر تمن تزکیہ. بہرحال میں ونو تہ یہ انتہائی اہم آیت قرآن پاکچ یتھ آیہ مبارکہس مز رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہند فرائض منصبی یا تم مقاصد بیان آمت کرنے یمو مقاصدو خاطر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث آئے کر. سارے کھت گۄڈنیُک یُس زن مقصد یمہ تحت یا یمہ خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث آئے کرنے تمچ سپدے رات کما حقہ تشریح کہ سارے کھت گۄڈنیُک یُس زن مقصد یا سارے کھت گۄڈنِچ یۄس زن فرض یُس زن آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرنے سو اس تلاوت آیات یعنی اس کتاب کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرنا جو کتاب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور میں کرے تہ تمہ ساتنس تہ عرض کہ یہاں پر تلاوت آیات یہ الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور قرآن کی تعلیم یہ الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد بیان کیا گیا. اس بات سے یا اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک یس زن یہ باقی دنیاوی کتابن ہند پہ عام کتاب کی کہ جس کا صرف معنی ہی مطلوب ہو بلکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سن کلام قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سن اخ صفت اخ اس لیے اس کی تلاوت بھی بذات خود مطلوب ہے. اور میں کرے سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے بیان کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ جو کوئی شخص قرآن پاک کا ایک حرف تلاوت کرے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور یہ کریو میں عرض کہ عام لکن غلط فہمی خاص طور پر زن پڑھے لکھے لوگ ان کے دلوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن کو بغیر سوچے اور سمجھے پڑھنا شاید نعوذ باللہ من ذالک فضول اور عبث کام ہے. مگر یہ آیت اس حقیقت کی یا اس جو ان کا وہ خیال ہے اس کی تردید کر کہ قرآن پاک باقی یمن کتابن ہند پہ کی بلکہ اس کے جاب معنی بھی مطلوب ہیں مگر معنی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی مطلوب ہیں. توے وچن کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والے تھے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے جہاں وہ قرآن کو سمجھتے بھی تھے لیکن وہاں انہوں نے تلاوت کلام پاک کا بھی اپنی زندگیوں میں اہتمام کیا تھا. بلکہ کہن صاحب صاحب مطلق آمد کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت صرف ایک دن میں مکمل کرتے تھے. کہن صاحب صاحب مطلق وہ تو صرف 2 دنوں میں تلاوت کلام پاک کرتے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی کہ جس شخص نے 3 دنوں سے کم میں قرآن پاک مکمل کیا اس نے قرآن میں سے کچھ بھی حاصل. تب جا کر صحابہ 3 دنوں کے اندر اندر قرآن پاک کی تلاوت. وہ اس سے پتہ چلتا ہے
कि कुरान पाक तिलावत बजाते खुद मतलूब, बल्कि जो कुरान में मनाजिल हैं, यानी कुरान पाक में कस मंजिल 7 मंजिल, ये असल में उसी बात की निशानदही है कि अक्सर सहाबा एक हफ्ते के अंदर अंदर कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल करते थे। इसलिए अम आयत तल अस पे हुक्म यवन करने कि जहां ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज मनसबी था कि वो लोगों के सामने इस किताब की तिलावत करें, वहां हम पर भी ये फर्ज आयद होता है कि हम भी इस किताब की तिलावत करें। गो प्रेथ दो एहतमाम कर कुरान पाक की तिलावत। मगर मैंने फिर जवान में खसूसन कि तिलावत मुतलिक कि तिलावत गई बिल्कुल तिथे ही कर जिस तिलावत कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि मैंने इसके लिए ये भी कहा था कि इस उम्मत का ये खास तुर्र इम्तियाज है कि इस उम्मत ने न सिर्फ कुरान को महफूज रखा, बल्कि जिस लहजे में, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को पढ़ा, उस तरीके को भी इस उम्मत ने महफूज, बल्कि न सिर्फ महफूज रखा, बल्कि इस तरीके को बाज़ाब्ता एक फन और एक इल्म का दर्जा यथ इल्म तजवीद वन। और कुरान पाक आयत पढ़ दो भी, मैं इसलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तिक जवान मज गि शौक पैदा गसन कि वो तजवीद के इल्म को सीखें और वो कुरान की तिलावत का बाज़ाब्ता अपनी जिंदगी में एहतमाम करें। कुरान पाक आयत सूरतुल क़ियामह मज कि कुरान पाक हुक्म कर, अल्लाह ताला हुक्म कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम करियो हज तिथे कटनस तिलावत कि यथ कट तिलावत कर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अम पत आव इस जन अस पे हुक्म कि तुम करियो तिथे पठन तिलावत यथ पर जन अरब लोग तिलावत कर। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इल्म तजवीद में बाज़ाब्ता एक एक हर्फ के बारे में ये कहा गया और लिखा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीन को कैसे अदा करते थे, सा को कैसे अदा करते थे, स्वाद को कैसे अदा करते थे, जा को कैसे अदा करते थे, वा को कैसे अदा करते थे, ये डिफरेंस तान। तो इस इल्म को सीखना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। क्योंकि एक तो जिंदगी में तिलावत का एहतमाम होना चाहिए, दूसरा तिलावत के अलावा हम हर रोज नमाज पढ़ते हैं, उसे पढ़ते हो नमाज, मगर नमाज में हम क्या करते हैं, नमाज में भी हम कुरान की तिलावत करते हैं। वह अगर ये तिलावत तथ तरीकस पे युस तरीक़ होमुत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर उस हदीस पर कैसे अमल होगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमनी उसल्ली, नमाज ऐसे ही पढ़ो जैसे आप मुझको नमाज पढ़ते हुए वो तिलावत तिथे करें। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स तिलावत करता है और ज़बर ज़ेर का फर्क आता है या अल्फाज बदलते हैं, उससे नमाज मकरूह हो जाती है। वो यूता एहतमाम और इतनी अहमियत है किसकी, इल्म तजवीद की। वो योस गोडनुक हक या योस गोडनुक फर्ज युस मकसद हेत आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो है आयात की तिलावत। दयम मकसद यम खतर जन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस आय करने, बहरहाल वो है यत्लू अलैहिम आयातिका, ये तो पहला मकसद था। दूसरा व युअल्लिमुहुमुल किताब, दूसरा मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि वो लोगों को किताब की तालीम देगा। यानी किस किताब की, जो किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी कुरान मजीद। पहला फर्ज, पहला मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का वो क्या था, तिलावत आयात। वो इसलिए ये गए सारी जिंदगी में आसन। दयम तिलावत आयात के साथ साथ दूसरा मकसद कि इस किताब की या कुरान की तालीम वो लोगों को देंगे। अब बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की तालीम किन को दी, सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन। सो हदीस रात भी हजरत सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उन्होंने कहा था फ़अल्लमनाहुल इल्म वल अमल वल कुरान जमीआ, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का इल्म भी सीखा, इस पर अमल करना भी सीखा और इसको पढ़ना भी सीखा, यानी तीनों बातें सीख। गो गौनियत को तिलावत वो पहला मकसद था। दूसरा मकसद कि इस किताब की तालीम देंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा गौर करिए तालीम किन को देंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला, उनकी जुबान क्या थी, तुम्हारी जबान अरबी। और कुरान को किस जुबान में नाजिल किया गया,
इन्ना अंजलनाहु फिल कुरान के बारे में है कि इसको हमने किस में अरबी में नाजिल किया है। साहब साहब जैसन लैंग्वेज या सत क्या उस। तो अब सोचने की बात है, अगर कुरान सीखने के लिए या कुरान समझने के लिए सिर्फ माना मालूम करना सिर्फ काफी था, तब सहाबा को कुरान की तालीम देने का कहां से सवाल पैदा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दय्यम मकसद आओ बयान करने कि यह सा आसि लुकन दिवन तालीम हेचनावन आसि कुरान पाक, मगर कुरान कथ जबान में नाजिल गुमुत, अरबी जबान में। जिनको पढ़ाना है वो भी अरबी के माहिर हैं, यानी सारे को ज्यादा अदबस पे दस्तरस, बड़े बड़े शौरा, बड़े बड़े फुजला उस वक्त अरब के उस सरजमीन में मौजूद। उनको कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुरान की तालीम देंगे। इससे पता चलता है कि कुरान को समझने के लिए सिर्फ अल्फाज का माना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़ालिकल किताब ला रैब फीह यम साथ नाजिल गो, ज़ालिका हो मतलब ते अरब सहाब सब जानन, लाउ मतलब ते जानन, रैब एमिक मतलब ते जानन, मगर इसके बावजूद कहा जा रहा है कि रसूल का मकसद दुनिया में आने का यह है कि वो किताब की तालीम इन सहाबा को देंगे। वो इससे पता चलता है कि महज तर्जमा से या महज अल्फाज का माना समझना कुरान को समझने के लिए काफी नहीं है, बल्कि कुरान समझने खातिर रुजू करना केमिस कुन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कुरान का कोई भी तर्जमा जो एक इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह से बेनियाज करे, वो तर्जमा कुरान की हक अदाई नहीं कर सकता। हक अदाई क्या, बल्कि एक इंसान उससे गुमराह हो सकता है। इसलिए आज युजन लुकन हिंदन दिलन में ये कंसेप्ट कि बासा तुल कुरान पाक, फिर मैं उसका तर्जमा पढ़ूंगा, फिर मैं उसको तफसीर से समझूंगा, ये एक इंसान की हिदायत के लिए काफी नहीं है, बल्कि हिदायत लबि तमिस कुरान निश तेल ये सु तर्जम पढ़ मगर तशरीह कर सिर्फ सोई यस तशरीह कर्मुच जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बहुत से उलमा ऐसे आए हैं मार्केट में, आज दुनिया में वारिया उलमा तुम जो कहते हैं कि मुझे लगता है इसका मतलब इस तरह से है, यूं वन आयतुक मतलब मे बासन, हालांकि ये सरी गुमराही है, क्योंकि कुरान की आयत का सिर्फ वो मतलब माना और लिया जाएगा जो मतलब समझाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बदिम मिसाल कुरान पाकस मज हुक्म आमुत कि यम सातन तुह रोज थयु तो सुबह सादिक से लेकर कहां तक, गुरूबी आफ्ताब तक। कुरान पाकस मज आमुत लफ्ज हत्ता खैतुल अबयज़ मिनल अस्वद, जब सफेद और काले दारे आपस में अलग अलग हो जाएं तब आप इस सहरी को बंद करेंगे। रवायतन में आमुत यम सातन ये आयत नाजिल गई, अख सहाबी अख तमिस नाव हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुमो कर काम यम सातन ये आयत बूझ, उन्होंने अपने तकिए के नीचे दो धागे छुपा लिए, यानी अत तकियस तल थी कस ज पंदाव, अख सफेद ब्यास क्या कुरान आयत क्या, तोतान रूजू सहरी कर योतान यह सफेद क्रुहन अलग अलग गस। अदी बिन हातिमन न्यू अत मतलब यह कि मतलब हसा गो योतान सफेद क्रुहन में बाज़ाब्त गाश त्यूता यह कि सफेद लगे ब्योन पता क्रुहन लगे। बहरहाल ये सात यमो यह कोर, बहरहाल यम आय दर खिदमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो केमिस दोपस अदी हसा यित पठ कर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी को बुलाया और कहा अदी तुम्हारा तकिया इतना बड़ा है कि इसमें पूरी कायनात समा गई। दोपस अदी चोन तकिया युता बोड़ के आत्मस सारी कायनात। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ये खैतुल अबयज़ मिनल खैतुल अस्वद, इससे मुराद असल में वो आसमान पर वो दो दारियां हैं युजन सो आसन च शफक के वक्त सफेद और युजन ब्याक क्रुहन दारा वो अलग अलग, ये मुराद है। अब अगर कोई शख्स सिर्फ तर्जमे की बुनियाद पर इस आयत को समझना चाहे तो सुकुस मकसद कर वही मकसद जो हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी। इसलिए कुरान सोई तफसीर कुरान सोई तर्जम च मोतबर यथ जन सनद आसि या यजन रलन आसि तशरीह कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस तशरीह को रसूलुल्लाह ने सहाबा को समझाया, सहाबा ने ताबीन को समझाया और सीना ब सीना ये आज तक हम तक महफूज हालत में आया है। इसलिए अवश्य रवायतन में आमुद फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो
कह शख्स अगर कुरानस में पन राय कर, यानी कुरान की तफसीर के वक्त या कुरान के तर्जमे के वक्त अगर वो अपनी राय दे और वो राय सही भी हो, सा राय आज क्या, फिर भी उसने गलत किया, तम पत तम क्यों, क्योंकि सनद यजन वो सिर्फ कौन है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इससे पता चला कि कुरान को समझने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और उनकी सीरत को समझना जरूरी है। बल्कि ये बिल्कुल ये काटने समझ ये अहम का वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला इंसान हिदायत खतर सिलसिल चलमित, एक को कहते हैं किताबुल्लाह और दूसरे को कहते हैं रिजालुल्लाह। किताबुल्लाह गए आसमानी किताब, रिजालुल्लाह गए अल्लाह तबारक व तआला से पैगंबर। अगर हिदायत खतर ऐसे सिर्फ किताब ही योतन काफी, तब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से क्या नाजिल करते, सिर्फ किताबें, और इसके मुख्तलिफ जराया भी वो इस्तेमाल कर सकता था। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन पत्थर की तख्तियों पर तौरात लिखी हुई थी, क्या बईच अल्लाह ताला कह रहे तिथे नाजिल कुस आसमानी किताब। मगर हम देखते हैं जब भी अल्लाह ने आसमानी किताब नाजिल की, उसके साथ कौन भेजा, एक मुअल्लिम जरूर भेजा। वो इसका मतलब है कि वो लोग जिस किताब अल्लाह तबारक व तआला सूज अमिच सही तशरीह कर कुस सु मुअल्लिम यूसुफ किताब सूज आव सोज, क्यों करेगा वही तशरीह, बाकी क्या करेंगे तशरीह, क्योंकि जो नबी होता है वो बराह रास्त किसकी गाइडेंस में होता है, वो अल्लाह की गाइडेंस में होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो खुसूसी तौर पर कहा गया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते हैं, जो कुछ वो कहते हैं वो अल्लाह की वही से कहते हैं। वो इसलिए कुरान पाक तशरीह सिर्फ सो मोतबर, कुरान पाक को तर्जम सिर्फ सो मोतबर जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात हैं। अलबत्ता अख आयत कंस मगसी मुगालता, एक आयत कुरान में है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुदक्किर, हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए इंतहाई आसान बनाया, है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे। तो अक्सर से पढ़े लिखे लोग आज अम हायतुक हवाला दिवन पत वनन कुरान वनन पाने कि बुश समझन खतर आसान, इसलिए इसका हम तर्जमा उठाएंगे और इसको पढ़ेंगे, हम खुद से कुरान के आलिम बन जाएंगे। मगर याद रखता हूं, इस आयत की तशरीह में उलमा ने लिखा है, ये तो कुरान खुद कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बनाया, यानी यमजन मोट मोट अहकाम जन्नत का तसव्वुर, जहन्नम का तसव्वुर, आखिरत यजन याद दहानी, इथे पटे खुदा से तसव्वुर, ऐसे तसव्वुरात को यानी यमजन अकिस इंसान इबरत हासिल करने खातिर उनको समझने के लिए तो खाली तर्जमा काफी है। लेकिन कुरान से जो अहकामात निकलेंगे, कुरान चो आयतों में जिमजन मसाइल नेरन, कुरान चो आयतों में जिमजन अहकामात नेरन, वो अहकामात आप सिर्फ तब समझ सकते हैं जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को समझेंगे। इसलिए हिदायत के लिए कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में समझना जरूरी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए क्या जरूरी है, कुरान। इसलिए हिदायत खातिर जी चीज जरूरी समझे, एक कुरान को भी समझना होगा, मगर कुरान को किसके ज़ेर साया समझना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ज़ेर साया। आज आम तौर पर अगर आप देखते होंगे यूट्यूबर्स पे अक्सर तुम आलिम जो कहते हैं कि इंसान की हिदायत के लिए बस कुरान काफी है, कुरान कम किताब, और वो हदीस को वो ऑथेंटिक तुम मानन तब ऑथेंटिक क्या, या तुम हदीस हुज्जत मानन क्या, मगर ये आयत उसकी नफी करती है। बल्कि ये वनन अगर एक इंसान हिदायत जरूरत है, उसको कुरान की भी इत्तिबा करनी होगी और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत और अहादीस मुबारका का भी इत्तिबा लाजमी तौर पर करना होगा। अवया वन कि अल्लाह तबारक व तआला फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मकसद है तिलावत आयात, दूसरा मकसद है कि वो इन आयात का माना और मतलब भी लोगों को बताए। फिक्र कि कुरान च आयत हुन सुई मतलब काबिल कबूल युस मतलब समझो अमिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अम आयत मज अहकाम नेरन, अम आयत मज मसाइल नेरन, वही अहकाम वही मसाइल काबिल कबूल होंगे जो अहकाम समझाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। युति सूरह बकरा ब्रोह पढ़ो, इसमें आपको रोजे के मसाइल भी आएंगे, इसमें आपको हज के मसाइल भी आएंगे, इसमें आपको इसे पढ़े ज़कात के मसाइल भी आएंगे,
कह शख्सा वन है ज़कात मिसाल के तौर पर यूत मालस पे ये आज वन कि जो चीजें इस्तेमाल में होती हैं उन पर ज़कात नहीं है, मगर ये कब हमें रियल इल्म ज़कात, रियल इल्म हज, रियल इल्म रोजा वो हमें कहाँ से मालूम होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से। इसमें अपनी राय या इसमें अपना कयास वो काम नहीं करेगा। और दयम का थजे याद, इसी आयत से ये भी पता चलता है, क्योंकि जवान खुसूसन वन, क्योंकि आज ये फितने यूट्यूब पर सबसे ज्यादा हैं। आम तौर पर आज वन हदीस कुरान यह महफूज, अमिच हिफाजत जिम्मे कम निमुत अल्लाह तबारक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू, इसलिए हम सिर्फ किस पर अमल करेंगे? कुरान पर। वो कहते हैं कि हदीस उस तरह से ऑथेंटिक हदीस नसा त्यूसा हिफाजत, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है। मगर जब आप इस आयत की तफसीर किसी भी मुस्तनद तफसीर से आप पढ़िए, इस आयत से पता चलता है कि हिदायत के लिए क्या जरूरी है, कुरान भी हदीस। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की हिदायत के लिए दो चीजों का इंतजाम करे, इन दो चीजों में से सिर्फ हिफाजत की जिम्मे एक ले ले? वो इससे पता चलता है कि जिस तरह कुरान महफूज है उस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी महफूज है। बल्कि अकिस हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अनकरीब ही फितन हिंद जमान, यानी एक जमाना आएगा जब लोग किसमें मुब्तला हो जाएंगे? फितनों में मुब्तला हो जाएंगे। और अत हदीस में तो रसूलुल्लाह पेशन कोई देखो, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने गांव तकियों के साथ बैठे, गांव तकी का मुशायर गोल तकी डाक दे, तो उनके सामने मेरी हदीस आएगी, वो कहेंगे हम इसको नहीं मानेंगे, यानी तुम्हारे ये ना सच सही संत सान अश वोतमुत क्या इसको, और आज वही हो रहा है। चलो बराबर आखिर जमान निशानी ये पेशन गोई का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फरमो रसूलुल्लाह एक साथ फरमो कि मेनिस फिरक मेनिस उम्मत गसन 270 फिरक, बल्कि एक हदीस में तो 73 का जिक्र है, तुम मज अक्कई फिरक युजन कत मज हकस पे। और पत कर निशानदही सु फिरक कुस हकस पे युस अलैकुम बिसुन्नती, वो मेरी किस पर होगा? सुन्नती। और पत पर वो सुन्नत खुलफाए राशिदीन, तो इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फिर किन की? खुलफाए। इसका मतलब है ये सिलसिला नीचे तक चलेगा। और वुशन इस पर कुरान पाक हिफाजत, इसकी तो हिफाजत अल्लाह ने जिम्मे ली है, मगर कैसे हिफाजत हो रही है? इंसानों के जरिए से। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अहादीस मुबारका की भी हिफाजत की है। इसके लिए एक मुस्तकिल फन है कि लोग हदीस को याद करते हैं, और उलमाए हक मुहद्दिसीन हक आज की दुनिया में मौजूद जो दूध का दूध और पानी का पानी इसमें से निखारते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सुनची अजीम एहसानियत उम्मत पे कि इस उम्मत ने अहादीस मुबारका की छांट पटक करने के लिए बाज़ाब्ता एक इल्म भी रखा है, या तो इस वरन इल्म अस्माउर रिजाल। अगर आप इल्म अस्माउर रिजाल पढ़ो ना, हैरान हो जाता है इंसान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज। बल्कि बह वनो तक मिसाल रावी युजन हदीसुक आसन, उसकी रिवायत को तब तक नहीं माना जाता है, तम रिवायत तोतान कबूल करने क्या योतान तम पूरी जिंदगी हालात पढ़ने। उसने जिंदगी में कभी झूठ मत बोला है, उसने जिंदगी में कभी खयानत मत की है, उसने जिंदगी में कभी वादा खिलाफी की है, उसने जिंदगी में कभी नमाज कजा मत की है। यीता मुहिम यीता बारीक शरत आमत लगाने के खतर सही हदीस खतर कि इंसान की अकलें दंग रह जाती हैं। अस्माउ रिजाल के सिलसिलस में लाखों मुहद्दिसीन की जिंदगियां नकल हैं। ये गो हालत कमन हिज मुहद्दिसीन हिज लकट लकट तफसील ताज मुहद्दिसीनो करमज नोट कि अमकार जिंदगी मज करमुत अमली कारनाम, किससे इल्म हासिल किया, कैसे इल्म किया। एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। हमारी कश्मीर में एक मुहद्दिस है शेखुल हदीस, ये मुफ्ती नजीर साहब, आप उनसे हदीस सुनिए, वो बाज़ाब्ता आपको उस हदीस की सनद बताएंगे, मैंने अपने उस्ताद से सुना, उसने अपने उस्ताद से सुना, और जाते जाते इस लड़ी को वो बराबर मिलाएंगे कहां तक? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये हदीस की हिफाजत नहीं है तो फिर क्या है? हदीस फिक्र तारन कि जैसे कुरान की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है, उसी तरह कुरान इस हदीस की हिफाजत भी अल्लाह तबारक व तआला के दयम फर्ज बकर मकसद गोडनुक फर्ज आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन या गोडनुक मकसद तिलावत आयात। और याद रखिए तिलावत वैसे ही करनी है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझाई, और
तिलावत तिथे पर हक कुरान पाक को कारण जिस पर हिस्सा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसके लिए एक इल्म है बाज़ाब्ता जिसको इल्म ताजवीद और याद गैस थाउन बवन ये बड़ अड़ ये हक अगर आप बूढ़े हो गए हालांकि उज़ुर बूढ़ा होना कहीं मगर चलो वहीं दिन बो रिलैक्सेशन की वजह से बड़ मगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछ होगी कि आपने अपने बच्चों को ये इल्मी ताजवीद सिखाया या नहीं। इसके लिए आपको बाज़ाब्ता दरसगाहों का इंतजाम उलमा के पास जाना होगा कि मोन बच गस परान तथ लहनस मज पढ़न यथ लहनस मज हेचनो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये पहला मकसद। दूसरा मकसद क्या वन में कि वो कुरान की तालीम लोगों को देगा और मैंने कहा कि कुरान की तालीम महज तफसीर पढ़ने से महज तर्जमे से हासिल नहीं होगा बल्कि तफसीर और तर्जमे से सिर्फ कुरान के वो आयात समझ में आएंगी जिनसे नसीहत और इबरत का सामान फराहम होता अहकाम मसाइल फिक्का वो काम तो बहरहाल उलमा का है। आम इंसान बेबस अगर वो उनमें मुदाखलत करेगा तो उससे वो गुमराही हो सकता है। और दयम कथ में यह कि युअल्लिमुहुल किताब खतर जरूरी शर्त कि कुरान को समझने के लिए एक तो कुरान लाजमी है ही मगर दूसरा इसको हमें कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की रोशनी में हमें कुरान को समझना होगा। रब्बुल आलमीन से मंगो दुआ कि सुदीन असीमन कफन पर अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।